Hey, what's up everyone, Profi here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 16th of Feb, and we got a green solid close from Nifty. Over the weekend, RBI gave a new directive which changes how brokers and prop funds borrow money from the banks for their day-to-day trading activity, and this was a bad news because this would definitely reduce the option trading volumes, and everyone on the social media was speculating that the markets will definitely react negatively. And the markets just opened 25 points gap down, and right from where the markets opened, the markets continuously headed higher. Just to give you context, from the day's low of 25,350, Nifty rallied almost 350 points, and as you can see on the charts, we are closing somewhere around 25,700 levels. Yes, there was definitely a negative reaction, but most of that negative reaction was sector specific. So most of the stock market related stocks, including the broking stocks and the exchange stocks, took a lot of beating today. In spite of markets closing green today, the VIX has also closed in green, and we are trading somewhere around 13.5 VIX. And the straddle opened at 190, and within the first 45 minutes, we saw an in-sale crush of 30 points, and it was trading almost at 160 levels. But as the market started breaking all the resistances, including the yesterday's high, then there was some amount of repricing and there was some amount of IV spike, and the straddle again shot back up from 155 levels to 160 levels, and the straddle kind of started behaving a little erratic. And towards the end of the day, around 2:30, there was another bout of straddle spike where the straddle spiked to 175, but now the straddle has cooled down to 155 levels, and probably we might see a 150 closing. And this makes straddle likely to open somewhere around 120 levels, and if the straddle opens below 120 tomorrow on Nifty's expiry, we must be a little cautious taking short gamma delta neutral positions right at the first tick. So let's get to the terminal and let's see कैसे plan हम बना सकते हैं कल की निफ्टी एक्सपायरी के लिए. Right, daily chart पे we are seeing a textbook kind of an engulfing candle here. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ टेक्स्ट बुक एनगल्फिंग कैंडल का डेफिनेशन के हिसाब से बना है, एंड दिस इज कंसिडर्ड बुलिश बाय ऑल स्टैंडर्ड्स. बट अगेन द मार्केट्स are behaving based on the news. There is a lot of news flow around, so you cannot be like completely relying upon price action, especially on a positional basis, because news के हिसाब से market suddenly अपना रंग बदल सकता है. But yes, a good thing is that markets इस level पे which was a major inflection point, इसी के आसपास एक green candle बनाया है. So the risk reward wise this is a good bet. यहाँ पे हम लोग positional अगर बात करेंगे तो you can actually go with some sort of a bullish spreads, basically put spreads, credit spreads या call debit spreads यहाँ पे बना सकता है. The risk reward is quite good, and also markets अगर इस कैंडल के 50% पे अगर रिट्रेसमेंट करता है तो देन वी कैन इवन ऐड द पोजीशंस हियर विद द लो ऑफ द कैंडल एज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टॉप लॉस. सो दिस वाज अ वेरी गुड इन्फ्लेक्शन पॉइंट. अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो आई थिंक वी डिस्कस दिस ऑन द फ्राइडे वीडियो एज वेल. यहाँ पे वी डिस्कस्ड हाउ दिस हैज मल्टीपल टच पॉइंट्स एंड हाउ दिस कुड बी एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एंड मार्केट्स फर्स्ट 5 मिनट्स में कहीं ना कहीं उसी के आसपास सपोर्ट लिया, एंड वॉट वी सॉ वॉज सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन ट्रेंडिंग डे. ऑफकोर्स बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला, बट कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दीज काइंड्स ऑफ कैंडल्स, दीज ग्रीन कैंडल्स, दीज पुल बैक्स वर प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट. तो लोअर टाइम फ्रेम पे yes, it was a clear kind of a trending day, but yes, again यहाँ पे markets यहाँ पे थोड़ा CPR यहाँ पे दिखता था. I mean, I'm not using the CPR indicator here, but you can go back and check for yourself. तो somewhere here there was CPR, तो CPR से थोड़ा बहुत selling आया, but again कल के लो के आसपास ये selling भी absorb हो गया, and throughout the day the markets kept breaching all the resistances, right? And yes, straddle, as we already discussed, towards the end of the day you could notice that 170 के आसपास एक बार स्पाइक आया था, एंड 155 के आसपास कभी अभी ट्रेड कर रहा है. वी हैव अनदर 8 मिनट्स, सो मोस्ट प्रॉब्ली 155 150 के बीच में ही स्ट्रैडल क्लोज होने वाला है. एंड एज आई एम सेइंग, अगर 120 के ऊपर अगर स्ट्रैडल खुलता है देन इट्स गोना बी अ डिसेंट एक्सपायरी, बट अगर 120 के अगर नीचे स्ट्रैडल खुल जाता है देन we'll again go back to our original tactics of waiting for the markets to actually give some sort of a delta move, and then use the systematic traders exit liquidity to start making our positions. Open interest के बारे में again there is not much to talk, because most of the time यहाँ पे जो है put open interest add हो चुका रहता है 25,500 से लेके 25,600 से लेके, and 25,700 पे open union straddles build हो चुका रहता है, because 25,700 straddles would give 150 points on the upside and 150 points on the downside. So you can notice that 25,850 and 25,600
550। सो इस रेंज के बीच जो भी लोग स्ट्रैडल आज बाई किए हैं, सॉरी सेल किए हैं, उनका जो है PNL ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाने वाला, बिकॉज टुमारो इज एक्सपायरी. बट द सिचुएशन चेंजेस इफ अट ऑल वी ओपन विद अ बिग गैप ईदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड. तो कल के लिए क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकता है? तो अगेन we've got a wide range because आज के लो एंड आज के हाई के बीच ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का यहाँ पे एक बड़ा वाला रेंज बना है. तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है देन गिव द मार्केट फर्स्ट 1 आवर, पहले 60 मिनट्स मार्केट्स को टाइम दो, लेट द मार्केट्स डिसाइड कौन सा रेंज में मार्केट शिफ्ट होने वाला है. लेट्स से मार्केट्स कंटिन्यूसली स्टार्ट ट्रेडिंग अराउंड दीज लेवल्स, देन यहाँ पे हम लोग वी कैन ट्रेड समवेयर बिटवीन 25,850 एंड 25,700 लेवल्स. इस 150 पॉइंट के बीच हम लोग एक रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं. बट अगर मार्केट फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर या फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर वापस इधर रेंज में आ जाएगा, लेट्स से स्पेशली इफ इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो दिस लेवल 25,600 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, देन मोस्ट ऑफ द टाइम 25,700 जो है कल के लिए एक रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली 25,700 जो है उसका कॉल्स मोस्टली जीरो एक्सपायर होने वाला है. तो अगर मार्केट एक बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो देन द स्ट्रैडल प्राइसिंग विल ऑल्सो बी लाइक काइंड ऑफ थोड़ा बहुत रिप्राइस होने वाला है. तो अगर 135 के आसपास अगर स्ट्रैडल आपको मिल जाता है विद अ गुड अमाउंट ऑफ गैप डाउन, दैट इज 25,550, दैट इज ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट्स का अगर गैप डाउन दिखता है एंड स्ट्रैडल 130 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, देन वी कैन ट्रेड द फर्स्ट टिक इटसेल्फ 130 रुपीज पे हम लोग स्ट्रैडल शॉर्ट कर सकता है 25,500 स्ट्रैडल, विच गिव्स दिस एज आवर ब्रेक इवन पॉइंट ऑन द डाउन साइड एंड इवन अपसाइड भी ऑलमोस्ट 25,650, ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास हमको एक अच्छा होल्डिंग पावर मिलता है इफ यू कैन शॉर्ट 25,500 स्ट्रैडल एट 130 रुपीज. ये बहुत जरूरी है. जस्ट बिकॉज 25,500 के आसपास मार्केट्स आया या गैप डाउन पे खुला बट स्ट्रैडल इज ट्रेडिंग एट 110 और समथिंग, देन आई वुड नॉट एडवाइज यू टू शॉर्ट द स्ट्रैडल्स राइट अवे. आई आस्क यू टू शॉर्ट द स्ट्रैंगल्स, दैट इज प्रोबेबली 25,650 एंड 25,400. ये दो स्ट्राइक्स को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं एंड एज द मार्केट कम्स क्लोजर टू हियर देन वी कैन प्लान सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड. एक एक्सपायरी ट्रेडर के लिए जो कल के लिए एक फेवरेबल सिनेरियो होगा, दैट इज इफ द मार्केट गैप्स डाउन. थोड़ा मार्केट 25,550 के आसपास यहाँ पे मार्केट्स गैप डाउन खुल जाए एंड देन द मार्केट्स विल फाइंड दिस एज द रेजिस्टेंस 25,650 लेवल्स एंड यहाँ पे 25,450 लेवल्स एज द सपोर्ट. तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली 100 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट कल फंसने का चांसेस ज्यादा है अगर एक बड़ा गैप डाउन के साथ ओपन होता है. तो अगर मार्केट लेट्स से 25,650 या उसके ऊपर खुल जाता है एंड इफ द मार्केट्स ब्रीच दिस टुडेज हाई विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स, देन वी कैन गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड बाय शॉर्टिंग एट द मनी पुट्स विद स्टॉप लॉस द रीसेंट स्विंग लो एज द स्टॉप लॉस. बट अगेन यहाँ पे टारगेट हम लोग कंटिन्यूसली फिर से एक और ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसका प्रोबेबिलिटी लो है. आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल बट प्रोबेबिलिटी थोड़ा लो हो सकता है बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है 25,800 के आसपास एंड इवन 25,850 25,900 के आसपास. तो अगर हम लोग इस ब्रेकआउट को ट्रेड भी करेंगे, मेक श्योर टू बुक योर टारगेट्स समवेयर अराउंड दीज लेवल्स. 25,780 के आसपास टारगेट्स को बुक करने के लिए वेट करो एंड देन प्रोबेबली रीइनिशिएट इफ एट ऑल वी सी अ पुल बैक हियर. एंड मीन रिवर्शन ट्रेड्स तब भी लेना जब मार्केट्स में थोड़ा ओवर एक्सटेंशन दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ पे भी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट नजर आ रहा है एंड देन अगेन यहाँ पे एक बैंड बनते हुए नजर आ रहा है. सो यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रख के अगर आप ट्रेड करोगे देन मोस्ट प्रोबेबली आपका जो स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज्यादा होता है. तो अगर कल आपको मीन रिवर्शन ट्रेड लेना है, मीन रिवर्शन ट्रेड क्या है, कहीं पे भी आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखेगा तो वहां पे आप कुछ उल्टा मार्केट आएगा करके आप बेट ले रहे हो, राइट. तो यहां पे मेरे को एक नजर आ रहा है रेजिस्टेंस दैट इज समवेयर अराउंड 25,800 लेवल्स. नाउ यहां पे इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग द कॉल्स एंड बिकॉज मार्केट्स के पास बहुत ज्यादा माइनर रेजिस्टेंसेस है तो मार्केट कहीं पे भी आपका एक स्पाइक में आपका स्टॉप लॉस खा सकता है. तो इन दिस सिचुएशन माई प्रिफर्ड स्ट्रक्चर वुड बी अ डेबिट पुट स्प्रेड. डेबिट पुट स्प्रेड हम लोग ट्राई कर सकते हैं, दैट इज 1 OTM एंड 2 OTM का, जो 1 OTM और 3 OTM का जो डेबिट पुट स्प्रेड्स हम लोग बना सकते हैं 1:3 रेशियो में या 1:2 रेशियो में, डिपेंडिंग अपॉन व्हेन द मार्केट्स वुड कम टू दिस पर्टिकुलर लेवल. सो इफ यू डोंट नो हाउ टू ट्रेड डेबिट पुट स्प्रेड्स, probably read up, it's not such a complicated structure, especially on the expiry day. अगर आप एक्सपायरी के पहले आप रेशियोज बनाते हैं देन थोड़ा बहुत मतलब मार्क टू मार्केट ब्लू लाइन को अगर मेंटेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट एक्सपायरी डे पे आप प्योरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी आप पुट स्प्रेड्स को ट्राई कर सकते हैं. तो पे ऑफ लुक समथिंग लाइक दिस, पे ऑफ लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसे दिखता है. मेक श्योर
ये जो लाइन है ना, यहाँ पे थोड़ा आपको डेबिट होना चाहिए. डोंट कीप दिस एज अ क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट आता है तो बेसिकली अगर मार्केट सडनली नीचे आ जाता है तो देन आपका बायस राइट होने के बावजूद भी आपका MTM लॉस देगा. सो अगर आपका डेबिट होता है तो देन अगर मार्केट इमीडिएटली नीचे आता है तो आपका फर्स्ट प्रॉफिट में आएगा, एंड देन यहाँ पे आपका बेसिकली आपका ब्रेक इवन पॉइंट, सॉरी मैक्स प्रॉफिट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है. सो लेट्स से आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल हियर. तो मान लो कि मार्केट ऐसे आ गया, ऐसे ट्रेड करते यहाँ पे आ गया. नाउ यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, द मार्केट इज एट 820 राइट. सो 25,750 का एक पुट को बाई करना है, P+1 में डाल रहा हूँ, एक पुट को बाई करना है, एंड देन 25,650 का प्रोबेबली 3 पुट को सेल करना है. सो दैट गिव्स समथिंग लाइक दिस. इस टाइप ऑफ पे ऑफ हमको यहाँ पे डेबिट रहेगा, इस टाइप ऑफ पे ऑफ हमको नजर आने वाला है. सो इफ द मार्केट स्टार्ट्स कमिंग डाउन, रेजिस्टेंस से जब मार्केट नीचे आना शुरू करेगा तो देन फर्स्ट आपका जो बाई लेग है इट विल स्टार्ट गेनिंग, एंड द सेल लेग विल नॉट गेन एज फास्ट एज द बाई लेग. एंड जैसे मार्केट इसके आसपास आ जाएगा देन यू वुड बी लुकिंग एट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. बट अगेन यू शुड नो हाउ टू मैनेज दिस ट्रेड्स टिल द लाइफ साइकिल ऑफ द ट्रेड. बेसिकली आपका जो PNL है ऐसा नहीं इंप्रूव होगा, लाइक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऐसे लीनियरली नहीं जाने वाला है. तो हर डिफरेंट काइंड ऑफ अ मूव में आपका PNL ऊपर नीचे जाता रहेगा. सो यू शुड बी नोइंग हाउ टू मैनेज दीज काइंड्स ऑफ ट्रेड स्ट्रक्चर्स. इफ यू आर good at managing these kinds of ratios then only trade these structures. but मेरे लिए preferred structure ये रहेगा because जब यहाँ पे बहुत सारा छोटे छोटे levels पे resistance आ जाता है then मैं confidently calls को short करके stop loss नहीं रख सकता, and जैसे market इसके आसपास आ जाएगा then you would be looking at a decent amount of profit. and ये जो debit जो है, इस debit को मैं पूरे expiry के end तक मैं किसी ना किसी तरह मैं इस debit को completely मैं recover कर सकता हूँ. so I have different ways of managing these stuff. but अगर आपको ये सारे ट्रेड स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लिकेटेड लगता है देन यू कैन गो एंड trade whatever the structures, all the plain vanilla structures that you are comfortable with. that is mostly naked options. आप बेच के stop loss रख सकते हैं, options को buy कर सकते हैं with again strict stop loss and strict position size management, or you can even trade vertical spreads. ठीक है, तो ये सारे चीजों को भी आप कर सकते हैं. बट दिस इज वॉट माई प्रिफर्ड स्ट्रक्चर इज. मैं आगे वाले दिनों में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि रेशियो स्प्रेड्स को डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, एंड उसका PNL को कैसे मैनेज करना है, एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से कहाँ पे उसका प्लस और माइनस जो लेग्स रहता है उसको कैसे कैसे मैनेज करके प्राइस एक्शन के हिसाब से कंबाइन करके उसको कैसे ट्रेड करना है. सो आई एम गोना डू ऑल दोज थिंग्स इन द कमिंग डेज. बट या for this video, I think this is it. I'll see you guys after tomorrow's expiry. I wish you guys a good, profitable expiry tomorrow. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.